fine. Here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holder's rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. We need to start with this, right, students? Stakeholders in the business. We are supposed to start with this. Can you hear me, students? Yeah. Okay, thank you, Divya and Moini. Okay, so in the last session, we had a discussion on the same, how
you can be in touch with your stakeholders. Stakeholders are the one who are directly or indirectly connected with the company. मैंने शायद आपको मुकेश अंबानी का एक इंटरव्यू जो हुआ था उसके बारे में भी बताया था कि आई एम नॉट ग्रोइंग, आई एम नॉट इन रैपिड ग्रोथ मोड बिकॉज ऑफ माई लीगल हेयर और फॉर माई लीगल हेयर. It is for the entire Reliance family. This was the answer given by Mukesh Ambani during one interview. Journalist asked a very touchy question. At that time, Mukesh Ambani has replied in this way. So now let's see stakeholders in the business. Stakeholders are the individuals in the group who can affect the vision and mission of the firm. Yes, definitely, because the mass will be very big, and that can affect your mission as well as vision also. Here I would like to give you an example. रॉयल डच शेल काफ़ी अच्छी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, इंडिया में भी चल रही है. जो शेल के पेट्रोल पंप आप देख रहे हो वो उसी के. उसने अपना एक यूनिट एंटार्क्टिका में स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल एक्सट्रूशन का यूनिट था, एंड काफ़ी बढ़िया अमाउंट, आई थिंक $650 मिलियन के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट भी था. कंपनी बढ़िया चल रही थी, बट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो पोलार बेयर्स होते हैं, व्हाइट बेयर्स, उसको प्रॉब्लम हो रहा था, एंड फ्यू डाइड बिकॉज ऑफ दिस यूनिट. तो उसकी वजह से कई सारे इश्यूज हुए, एंड लेटर ऑन रॉयल डच शेल हैज डिसाइडेड टू वाइंड अप दैट यूनिट because after all the entire community, or you can say the stakeholders, don't want because of your company or because of our company natural get hurts. So that's why we can easily say that stakeholders can easily affect your vision as well as mission. Stakeholders are affected by the strategic outcomes achieved and have enforceable claims on a firm's performance. Stakeholder relationship can therefore be managed to be a source of competitive advantages. आपके stakeholders के साथ आपके relation कैसे है वो काफी मैटर करते हैं. If you really had a good terms with your stakeholders, then definitely you will have a competitive advantages in the market. Now competitive advantages means ऐसे advantages जो आपको मिल रहे हैं, आपके competitors को नहीं मिल रहे. कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मोरबी में सिरामिक यूनिट्स आप लोगों को मालूम होगा. कई सारे मोरबी में सिरामिक यूनिट है ना, उसका रॉ मटेरियल जो है वो है क्ले, एंड फिर टाइल्स में जो ग्लो आता है, जो फिनिशिंग, जो शाइनिंग आप देख रहे हो, उसके लिए एक मटेरियल आता है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, बट वो मटेरियल जो है वो उसके लिमिटेड सप्लायर्स है. So those who are having good terms with their suppliers, they will easily supply that raw material to the company on personal relation basis. So definitely उसको ये मटेरियल मिलेगा तो उसका प्रोडक्शन भी चालू रहेगा, उसका मार्केट में प्रोडक्ट भी सेल होता रहेगा. And those who don't have good terms with that supplier, उसको थोड़ा मटेरियल में डिले होगा, प्राइसेस में फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन भी लेट होगा, सेलिंग भी लेट होगा. So this is how we can say, if you have a good terms with your stakeholders, then definitely it will become one of the source of your competitive advantages. Now, this is the classification of stakeholders. We have capital market stakeholders. We have product market shareholders, and organizational shareholders. Now, in the capital market shareholders, the basic shareholders are there, equity, preference, and all. They will be there, capital market shareholders. Apart from that,
major suppliers of capital. It is banks, lending institutions, and all. They are also going to become your कैपिटल मार्केट शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, सभी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे. Then major suppliers of capital, banking, lending institutions, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी कैपिटल मार्केट शेयर होल्डर्स में ही कंसिडर किए जाएंगे. देन प्रोडक्ट मार्केट शेयर होल्डर्स, प्राइमरी कस्टमर्स, दोज हु आर गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, जो आपके एंड यूजर है, जो आपका टारगेट मार्केट है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, जो आपकी प्रोडक्ट परचेस करने वाला है, जो वो प्रोडक्ट किसी और को रिफर करने वाला है, रिकमेंड करने वाला है, जो आपको फीडबैक देने वाला है. सो प्रोडक्ट मार्केट शेयर होल्डर में सबसे पहला रहेगा प्राइमरी कस्टमर्स. दूसरे रहेंगे सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे. व्हाट एवर द रॉ मटेरियल हैज बीन रिक्वायर्ड, कुछ भी हो सकता है. सो बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला भी आपका स्टेक होल्डर ही बन जाएगा. देन होस्ट कम्युनिटी, जहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस कर रहे हो. आज अंडर द हेडिंग ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, फॉरेन से कई सारी कंपनीज जो है वो गुजरात में आके अपना बिजनेस कर रही है. सो ऐसी होस्ट कम्युनिटीज जो है वो भी आपके की स्टेक होल्डर्स पे आप कंसिडर कर सकते हो. देन यूनियंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियंस आर देयर, लाइक लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट के वेजेस वाले यूनियंस एंड मेनी मोर. सो वो यूनियंस जो है वो काफ़ी हद तक, अब तो काफ़ी हद तक उसमें चेंजेस आ गए हैं. अदरवाइज प्रीवियसली इट वाज क्वाइट टफ टू मैनेज सर्टेन यूनियंस. वर्कर्स का यूनियन होता है जो काफ़ी टफ हो जाता है कई बार उसको मैनेज करना, बिकॉज दे ऑलवेज वांट हाइक इन देयर वेजेस, they always want certain privileges and all. So it's tough for them to manage. But yes, it's part of your stakeholders. They are there. They are there because the company is there, and company is there because they are there. It's a vice versa situation. Both are important to each other, and that's why they have to take care of each other. Then the organizational shareholders, like employees, basic employees, full-time employees, part-time employees, expert employees, maybe financial consultants, yeah, other consultants, service consultants, and many more. ये सब जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल के शेयर होल्डर्स में कंसिडर किए जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, senior executives, a CEO, COO, CFO, and many more. Director, managing directors, chairman, everybody. Then non-managers, those who are there on the random basis, they are providing their consultancy services to the company. They will be also considered as the shareholder, organizational shareholders. भले ही उसके पास कंपनी के शेयर हो या ना हो, but they are directly or indirectly connected with the company, so we can consider them as as a stakeholders. So this is all about the stakeholders. Any doubts for this, guys? Okay, great. So we'll move to the next one. Now the next one is the important one. External environment, how to explore it, and why the external environment affects a lot to the company's vision, mission. कुछ भी बोल लो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कंपनी को सभी तरीके से हेड टू टो अफेक्ट करने वाला है. अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जनरली एनवायरनमेंट क्या होता है कि द थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग्स में है हम उसे एनवायरनमेंट कंसिडर कर सकते हैं. धीरे धीरे एनवायरनमेंट जो है या तो एक जो वैल्यूज होगी वो धीरे धीरे कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसे ही हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें रहती है वो धीरे धीरे एक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है एंड पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है.
जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सिंस लास्ट 20 years अप्रोक्स हम बोल सकते हैं। सिंस लास्ट 20 years बीजेपी गवर्नमेंट इज देयर। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो गुजरात की काफी अच्छी है। एंड धीरे धीरे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कंपनी को फेवर कर रहा है। नाउ ऐसे ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे है वैसे ही सोशल एनवायरनमेंट भी है, लीगल एनवायरनमेंट भी है, कल्चरल एनवायरनमेंट भी है, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है एंड मेनी मोर। नाउ अब इन सभी एनवायरनमेंट का इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो करना जरूरी है। जितना बिजनेस होगा उतना डीप में आपको इसका एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू आर देयर इन द बिजनेस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ अपडेटेड विद सर्टेन थिंग्स। आज बाहर मार्केट में क्या हो रहा है ये आपको मालूम नहीं होगा, देन इट्स ऑफ नो यूज। तो आपका बिजनेस में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ एज वेल एज योर प्रोडक्ट टू। मैंने आपको बजाज ऑटो की बात की थी तो आज उसकी स्टोरी में आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट केस स्टडी। I was there in Delhi and I met Mr. Rajiv Bajaj. We had a word to word discussion for not more than 30 seconds, 30 to 40 seconds. But yes, he said few things really very splendid. And I really appreciate it. I got amazed that yes, this man is deserved to be the CEO or you can say the MD of Bajaj Auto Limited. थोड़ा मैं आपको बैक स्टेज लेके जाऊंगा। एक टाइम था जब बजाज जो है वो काफी ऊंचाइयों को छू रहा था, काफी बढ़िया उसका सेल्स हो रहा था। हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी काफी देख रहे थे, मतलब हम लोग, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, हम लोगों ने देखी होगी। हमारा बजाज, हमारा बजाज बढ़िया चल रहा था। बजाज वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने 999 रुपीज में बजाज का स्कूटर सेल किया था, मतलब लोन पे सबसे पहले उसने वो स्टार्ट किया था, जो काफी बढ़िया था। उसके बाद EMI भी 999 का था, डाउन पेमेंट भी 999 का था एंड दे वर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट एक्सट्रीम। मार्केट शेयर भी अच्छा था। बट लेटर ऑन यूथ का टेस्ट जो है वो चेंज हुआ एंड समहाउ दे फेल टू रिकॉग्नाइज इट। उसको मालूम नहीं पड़ा कि भाई धीरे धीरे सेल्स कम हो रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? सेल्स इतना कम क्यों हो रहा है? बट सेम टाइम सोशल एनवायरनमेंट जो है, कल्चरल एनवायरनमेंट जो है, उसमें चेंजेस आ गए। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आ गया कि बजाज ऑटो को वाइंड अप करने की सिचुएशन आ गई एंड इवन कंपनी अप टू सर्टेन एक्सटेंट शट डाउन भी हो गई थी। काफी सारे इश्यूज हुए थे, स्ट्राइक्स हुई थी, लॉकआउट हुआ था एंड मेनी मोर। बट as you know, Bajaj family has always good terms with certain politicians and even their self also belongs to some political parties, so ज्यादा issue नहीं हुआ। But after that, Rajiv Bajaj came back to the India and उन्होंने ये business की बागडोर संभाली and they came up with precise observation that why we fail। सक्सेस हुए थे तो क्यों हुए थे वो उसने ऑब्जर्वेशन देखा, फेल हुए तो क्यों हुए वो भी उसने देखा, दूसरी कंपनी जो मार्केट में चल रही है वो क्यों चल रही है वो भी देखा, यूथ की क्या डिमांड है, यंगस्टर्स की क्या डिमांड है, पॉपुलेशन क्या है, एज कितनी है, इनकम लेवल कितना है, स्पेंडिंग पावर कितना है, देयर चॉइसेस एंड मेनी मोर थिंग। इन सब के बारे में डिटेल रिसर्च जो है वो करवाया गया। Guys, are you with me? ओके, थैंक यू। सो इन सब के बारे में डिटेल रिसर्च जो है वो करवाया गया एंड फाइनली दे कम टू नो दैट वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन आवर प्रोडक्ट। तो उन्होंने यूथ को ध्यान में रखते हुए बाइक लॉन्च किया। पहले जो थे वो मोपेड थे, स्कूटर थे।
नाउ दे हैव ट्राइड टू लॉन्च बाइक एंड सबसे पहला बाइक उसका था BYK, जो सिर्फ 27,000 रुपीज में आ रहा था। यस, 27,000 रुपीज में ओनली, बट नहीं चला मार्केट में। वो मार्केट में नहीं चला। Then they have made some, you know, a competitive strategy with the Kawasaki Bajaj. And they have then after they come up with the Boxer with price of 30,000 rupees and with the mileage of 94 kmpl। 1 लीटर में 94 किलोमीटर के आसपास आपको ये गाड़ी एवरेज देगी। स्कूटर, ये जो बाइक है वो आपको एवरेज देगी। तो सर्टेन, यस, तो सर्टेन लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा। कुछ ऐसा ग्रुप था जिनको ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लगी। देन उन्होंने अलग अलग उसमें वेरिएंट निकाले, AT, देन MT, अलग अलग वेरिएंट्स जो है उन लोगों ने वहाँ पे निकाला। एंड यस, दे फील दैट ये अभी हमारी गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आ रही है। देन लेटर they come up with the first bike, or you can say the sports bikes, Pulsar 150cc with the DTSI टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ बजाज के पास ही है। डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, एक ही इंजन में 2 प्लग लाने वाली कंपनी है, तो ये है बजाज। देन पल्सर 150, 180, 220 एंड मैनी मोर, उसमें अलग अलग वो चेंजेस जो है वो करते गए कंपनी वाले। एंड रिसेंटली आप देख रहे हो कि बजाज डोमिनार जो है वो भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। कंपनी अपना जो बजाज डोमिनार जो है 400cc वो 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रही है। 70 कंट्रीज में अपना बजाज डोमिनार या तो अपने बजाज की प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है एंड दे आर ऑन द पीक नाउअडेज। बजाज ऑटो का शेयर्स अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे रहा है। So this is how, if you have a great observations or analysis or scanning of external environment, then it will really helps you a lot to be on the top. Please be online. एंड आज आप देख सकते हो कि बजाज का मार्केट शेयर भी काफ़ी बढ़िया है। एंड KTM जो है वो भी नाउ इट्स सब ब्रांड ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड itself. So now let's see how the external environment is going to affect. What are the parameters, what are the types of external environments, we'll see one by one. यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा। जो स्लाइड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि ये आपके फर्स्ट मॉड्यूल का पार्ट ना हो, बट वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर, टॉपिक बाय टॉपिक we are going to discuss it. And later on, once I complete this slide number 1, or you can say the SM1, I will share the slides with you today only. सभी स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ये टॉपिक जो है वो मॉड्यूल 2 का हो या मॉड्यूल 3 का हो, या फिर जो मेरी सेकंड स्लाइड्स है उसमें मॉड्यूल 1 का टॉपिक हो। जनरली ऐसा नहीं होगा, मॉड्यूल 1 तो पूरा इसी में ही कवर हो जाएगा, बट इसमें मॉड्यूल 2 के सर्टेन पोर्शंस होंगे। तो मैं जो पीपीटी आपको दूंगा उसमें SM1, SM2, SM3 ऐसा लिखा होगा, तो डोंट एज्यूम कि SM1 इक्वल टू मॉड्यूल 1। सिर्फ मैंने वो पीपीटी को नंबर दिया है, मॉड्यूल वाइज पीपीटी नहीं है। whatever the PPT I am going to upload वो मॉड्यूल वाइज नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल वाइज जाएंगे, सिलेबस वाइज जाएंगे, then it will become very short and precise. The things that I want to share in a broader way, in the broader perspective. That's why मैंने अपने हिसाब से पूरा शेड्यूलिंग जो है वो सीक्वेंसिंग जो है वो सेट किया है। Got it guys?
Okay, yeah, thank you. So, environment literally means the surroundings, that external objects, influences, or circumstances under which someone or something is exists. The environment of any organization is the aggregate of all conditions, events, and influences that surrounds and affect it. आज आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी होगा, उसका खुद का एक एनवायरनमेंट होगा, एंड वो एनवायरनमेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, आपके विजन को, आपके मिशन को, आपके गोल को. दे आर गोइंग टू क्लियरली अफेक्ट योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. कैसा एनवायरनमेंट है, आपने देखा होगा कि सूरत की अगर हम बात करें, सूरत की नहीं, चलो गुजरात की बात करते हैं, पूरे गुजरात की. तो आप इंडिया में कहीं पे भी जाओगे तो कुछ लोग हैं वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि भाई गुजरात इज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, गुजरात इज अ लैंड ऑफ बिजनेसमैन. तो ये क्या है, ये क्यों है और किस वजह से? ये इसलिए है क्योंकि भाई गुजरात का एनवायरनमेंट ही पूरा ऐसा है कि लोग यहाँ पे बिजनेस को ज्यादा प्रीफर करते हैं. कुछ भी हो जाए, लोग कोई छोटा मोटा पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स वाई पूरा एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा है, और लोग इसको ऐसे ही जानते हैं. गुजरात इज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, गुजरात इज अ लैंड ऑफ बिजनेसमैन, एंड सो, एंड दैट्स रियली गुड. अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सर्टेन सिटीज लाइक इंदौर, भोपाल, सो वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, दे यूज्ड टू गो विद द गवर्नमेंट जॉब्स. सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब की है. दे यूज्ड टू गो विद द जॉब ओनली. तो ये एक पूरा एनवायरनमेंट है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, एक इन्फ्लुएंस है, ऐसे सर्कमस्टांसिस है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने जाएंगे, एंड लेटर ऑन उसका एक पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. मैंने आपको बात बताई थी स्विट्जरलैंड की. जब मैं स्विट्जरलैंड में था तो वहाँ पे मैंने कोका कोला ड्रिंक की थी, मतलब कोका कोला जो है वो बोतल मैंने परचेस की थी. उसके ऊपर लिखा था स्पेशली मेड फॉर स्विस. वहाँ पे मैंने उसके कंटेंट को देखे, कंटेंट इंग्रेडिएंट्स को देखे, तो इट वाज लेस हार्मफुल as compared to the other countries, because it was specially designed with a keeping in view of the Swiss people, Swiss government's rules and regulations, उसको ध्यान में रख के बनाई गई थी. So the environment, whether it is legal, political, economical, social, cultural, or any damn, it is going to affect your business a lot. Now, characteristics, it's very common, we can easily understand it, that environment is always complex. You cannot judge it. आप उसको प्रिसाइजली जज नहीं कर सकते हो कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो एनवायरनमेंट ऐसा ही होगा, या तो फ्यूचर हमारा ऐसा ही होगा, या तो फ्यूचर में 2-3 महीने के बाद ये सिचुएशन होगी. नो, यू कैन नॉट कंप्लीटली प्रिडिक्ट इट, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है. बट यस, आप इसको समझ सकते हो, आप इसको फोरकास्ट कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसा ही होगा, ये एनवायरनमेंट ऐसा है तो ऐसा ही होगा. नो, यू कैन नॉट डू इट कंप्लीटली. देयर विल बी a lots of issues in between. So environment is a complex, environment is dynamic, always ongoing. कुछ न कुछ होता ही रहेगा वहां पे. एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड, उसके अलग अलग कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. यहाँ पे एज ए होल हम एनवायरनमेंट की बात करें, मैं थोड़ा डिटेल में जाके बताऊंगा, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड मेनी मोर. कंपेटिटर्स एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वन, जो हमें ऑब्जर्व करना, जो हमें एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है. एंड
एनवायरमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। अगर आप कभी भी किसी तालाब के पास जाते हो या तो कोई शांत तालाब है वहां पे आप कोई पत्थर डालते हो तो उसके रिपल्स आते हैं, उसके वेव्स आती है वन बाय वन। शायद आपने ऑब्जर्व किया हो या फिर सेल्फ एक्सपीरियंस किया हो। तो ऐसी ही इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट की भी आती है। एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे कि महाराष्ट्र में आज से लगभग 4 या 5 साल गिन लो ना, चलो 5 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि वी आर गोइंग टू बैन प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, वी आर गोइंग टू बैन इट। तो अब आप समझ सकते हो कि उसकी इम्पैक्ट कितनी आई होगी। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था जिसमें ऐसा बताया गया था कि वी आर गोइंग टू बैन द प्लास्टिक। तो अब आप सोच सकते हो कि उसकी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड में किस हद तक आई होगी। सो एनवायरनमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। Now these are the environments, you can see the part of that. The economic environment, socio-cultural environment, global environment, technological environment, political and legal environment, demographic environment. Apart from that, जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। One by one, we'll go with the each and everybody, each and every point. By the time you take a look of all these points and how certain environment is going to affect your business, you try to find it out with one live example. I'm giving you 5 minutes to check it out. मैंने आपको पॉलिटिकल का एक एग्जांपल दिया। भाई पॉलिटिक्स में ये गुजरात जो है वो लंबे साल से, काफी सालों से एक ही पार्टी के हाथ में है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो सेम लाइक दैट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट कैसी रहेगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट कैसी रहेगी, ग्लोबल एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट कैसी रहेगी, इसका मुझे एक एक एग्जांपल चाहिए, लाइव एग्जांपल। देन उसके बाद इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, पावर ऑफ सप्लायर्स, पावर ऑफ बायर्स, यहाँ पे आगे बार्गेनिंग लग जाएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एंड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स इन इंटेंसिटी ऑफ rivalry. You please take 5 minutes and come up with one example.
Okay, so shall we start with the first one? Economic environment with one example. Yes, guys, one example of economic environment and its impact on business. Yes, okay. The economic policies by government at the business. Inflation, yes, very true. इन्फ्लेशन एक एग्जांपल मैं दूंगा जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज बिकम मोर कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा कॉस्टली हो गया पहले से डिमांड बाय द सोसाइटी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों चीज़ें यस लेबर कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है मैं इकोनॉमी की अगर मैं आपको बात करूँ तो यस हाँ लेबर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं लंदन में था तो हमारे कोच के जो ड्राइवर थे वो लेडी थे उसका नाम मार्था था एंड वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अलग से रहेगा पूरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है उसकी अलग ही हम डिस्कशन करेंगे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ओनली तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड दे हैव टू ड्राइव ओनली 8 आवर्स 8 आवर्स से अगर वो ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो उसका जो भी एम्प्लॉयर होगा अगर 3 बार ऐसा होता है कि वो ये लेडी ने 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क किया then the employer will be answerable to the government and that's why the labor cost was too high. We'll discuss one by one. हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझने की ट्राई करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ that will start in the next session. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं guys. So that's it for the day. Thank you so much guys. Enjoy your day. Tomorrow we'll start with the external environment and the impact with the example of all the environmental types. That's it for the day. Thank you guys. Enjoy your day.